Hello, friends. Welcome to this session. Today we are discussing human health and disease lecture 5. In this topic, we will discuss the immune system of human. Immune system contain what are the components of our immune system? Immune system contain number 1 lymphoid organ. Okay? Then lymphoid tissue. And then we are also having special cells, then antibodies. ठीक है? Our immune system contain lymphoid organ, lymphoid tissue, specialized cells which can kill antigen. Those are also called phagocytic cells, and also antibodies. We all know antibody is a army of protein produced by B lymphocytes, and antibodies neutralizes antigen, right? So first we are going to discuss about lymphoid organ. Lymphoid organ के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. Lymphoid organs means the organs where lymphocyte take birth, originate, take birth and proliferate and attain maturity. What are lymphoid organs? Lymphoid organs are those organs where lymphocyte origin, proliferate and attain maturity. Okay? मतलब पहले lymphocyte बनेंगे, फिर divide होंगे, proliferation and then attain maturity. Okay? So now these lymphoid organs again divided into two types. Primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. There are two types of lymphoid organ. Last class में हम ये discuss कर रहे थे. Primary lymphoid organ और secondary lymphoid organ. Two types of lymphoid organ है. Primary lymphoid organ means bone marrow and thymus. Bone marrow and thymus are the primary lymphoid organ. Primary lymphoid organs means where lymphocyte originate. जहां पर lymphocyte origin होते हैं, those are called primary lymphoid organs. And after origination, the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ. पहले primary lymphoid organ में बनेंगे. Lymphocyte first originate in primary lymphoid organs and then they go to secondary lymphoid organs. समझ नहीं आई बात? Now primary lymphoid organ again two types, bone marrow and thymus. Primary lymphoid organ में कितने टाइप हैं? Two types हैं, bone marrow and thymus. All the lymphocytes, जितने भी lymphocyte हैं, B lymphocyte, T lymphocyte, all the lymphocyte take birth in bone marrow. Okay? And the lymphocyte which attain maturity and remains in a bone marrow at that time of maturity, they are called B lymphocyte. The lymphocyte, T lymphocyte, B lymphocyte, सारे lymphocyte bone marrow में ही बनते हैं. But T lymphocyte after production they migrate to thymus. Birth bone marrow में ही है, लेकिन migrate, the lymphocyte which migrate to thymus they become T lymphocyte. T for thymus, इसलिए T for T lymphocyte रखा है. B for bone marrow, that's why B lymphocyte. So bone marrow में सारे lymphocyte बन जाएंगे, B lymphocyte, T lymphocyte, but some of the lymphocyte migrate to thymus, those become T lymphocyte. Okay? Then secondary lymphoid organ में एक list है completely. Secondary lymphoid organ याद रखने के लिए ट्रिक है plast. Okay? What is plast? P for pairs patches of small intestine. So even in small intestine also a lymphoid tissue is present, जिसको हम पेयर पैचेस बोल रहे हैं. ओके? जैसे क्या है, स्टेट में पुलिस चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में पुलिस चाहिए, एंड इवन स्मॉल विलेजेस में भी पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. In that way, each and every organ of our body has got lymphoid tissue. So small intestine में जो lymphoid tissue है
उसको हम बोलेंगे पेयर पैचेस बोलेंगे, पेयर पैचेस ऑफ lymphoid tissue in small intestine. L for lymph node. The various points in our body, various joints, various points in our body represent a solid lymph node where the lymphocytes are present and ready to fight with antigen. जैसे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब में पुलिस स्टेशन है, इन एवरी प्लेस. तो लिम्फ नोड भी आपको हैंड में लिम्फ नोड बोलेंगे, यहाँ पर लेग में लिम्फ नोड बनेंगे, नेक में लिम्फ नोड्स मिलेंगे, एवरी प्लेस वहां पर होंगे लिम्फोसाइट्स. अपेंडिक्स इज आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. स्प्लीन, स्प्लीन इज आल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. टॉन्सिल, टॉन्सिल कहां पे मिलेगा, स्प्लीन कहां मिलेगा, ये सारे लोकेशन बताइए. अपेंडिक्स यू कैन फाइंड, अपेंडिक्स यू कैन सी अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप सीकम बोलते हैं. फ्रॉम दैट सीकम ए लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज अपेंडिक्स. Spleen is the large secondary lymphoid organ. Spleen is a large secondary lymphoid organ present at the back side of stomach. Stomach के पास मिलेगा आपको. And spleen is also called graveyard of dead RBC. And spleen is also helping for storing the dead RBC and also helping for production, also help in recycling of iron. आयरन जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन है उसको रिसाइकल करने में हेल्प करता है स्प्लीन. जैसे डेड आरबीसी हैं, आफ्टर 120 डेज डेड आरबीसी स्टोर्ड हो जाते हैं स्प्लीन के अंदर. ओके, सो स्प्लीन आल्सो एक्ट एज ब्लड फिल्टर. फिल्टर का भी काम करता है स्प्लीन, बहुत सारे काम है इसके. स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड फिल्टर बिकॉज इट ट्रैप ऑल दी माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द ब्लड. जो ब्लड के रास्ते से जो माइक्रोब अंदर आते हैं ना, उसको ट्रैप कर लेते हैं स्प्लीन. स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी. स्प्लीन इज कॉल्ड रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, डेड आरबीसी. टॉन्सिल कहां मिलेगा आपको, टॉन्सिल एट द बैक साइड ऑफ टंग. इट इज ऑल्सो ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. अभी इसके नोट्स लिखना है कंप्लीट, एक बार नोट कर लीजिए. ऑलरेडी आई थिंक लास्ट क्लास में आप नोट करे होंगे ये सारे चीजें, सो एक बार नोट कर लीजिए. नाउ वी विल राइट व्हाट इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या होते हैं लिखेंगे अभी हम. फंक्शंस लिखेंगे इनके. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. व्हाट इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. immature lymphocyte, immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Antigen sensitive lymphocytes. So what type of lymphocytes are present in primary lymphoid organ? So you should say in primary lymphoid organ immature at the beginning, शुरू में जो है starting में क्या होंगे, immature lymphocytes होंगे which differentiate, which develop into antigen sensitive lymphocytes. And primary lymphoid organ में और एक point लिखेंगे, all the lymphocytes take birth in bone marrow. सारे lymphocyte, whether it may be B or T lymphocyte, all the lymphocyte B and T, दोनों भी B and T lymphocyte, all the lymphocyte take birth in primary lymphoid organ. So you should imagine what all the lymphocyte take birth in bone marrow, मतलब
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के दो एग्जाम्पल बताया मैं आपको, है ना, बोन मैरो एंड थाइमस. Bone marrow and thymus. All the lymphocytes take birth in bone marrow. ठीक है. Okay, this is about bone marrow. Here you can see the long bones of our body. जितने भी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर जो है येलोइश मैटर है अंदर. दिस इज कॉल्ड बोन मैरो. ये है बोन मैरो. ठीक है. And bone marrow is the center. Bone marrow is the place where all the WBC, all the RBC, platelet, everything produced in bone marrow. Bone marrow is the hemopoietic center. Hemopoietic center भी बोलते हैं आप इसको. Hemopoietic center. That means complete blood formation occur in bone marrow. पूरा का पूरा जो ब्लड फॉर्मेशन है, हीमोपोएटिक मतलब ब्लड फॉर्मेशन सेंटर. लिम्फोसाइट्स भी यहीं पे बर्थ हो रही है. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड है ना. इवन इन बोन मैरो देर आर सम ऑफ द लार्जर सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोटिक सेल्स. मेगा कैरियोटिक cells of bone marrow produces platelets. प्लेटलेट्स भी यहीं पे तैयार होते हैं. फर्स्ट ईयर में पढ़े ना, मेगा कैरियोटिक सेल्स होते हैं बोन मैरो में विच प्रोड्यूसेस प्लेटलेट. ओके, this is all about primary lymphoid organ bone marrow. Now what about thymus? thymus के बारे में क्या नोट्स बनाएंगे आप? bone marrow नोट कर लिए सारे पॉइंट्स. अभी हम thymus के बारे में क्या लिखेंगे? thymus is a bilobed. 2 lobes दिखते हैं thymus के अंदर. thymus is a bilobed primary lymphoid organ where you can see this located nearer to heart below the sternum. What is a sternum? breast bone बोलेंगे या चेस्ट बोन बोलेंगे. यहां पर ये चेस्ट बोन है, इसके नीचे जो है स्टर्नम होता है. यहां पर स्किन के नीचे स्टर्नम है. स्टर्नम के नीचे जो है थाइमस बोल के एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है. इट इज अ बाइलोब्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन लोकेटेड नियरर टू हार्ट. ओके, बिलो द स्टर्नम. एंड वन मोर पॉइंट, थाइमस इज having dual function. thymus के दो काम हैं. thymus number 1, thymus is a primary lymphoid organ, and second point, thymus is also endocrine gland. In first year we discussed thymus is also endocrine gland. thymus से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है. नेम ऑफ दैट हार्मोन इज thymosin. what is the hormone produced from thymus gland? thymosin. पढ़े हैं. And this thymus is quite large in newborns. मतलब न्यूबॉर्न बेबीज में ये बड़ा होता है जरा thymus. Thymus is quite large in newborn babies, and with progressive age, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव एज, इट अट्रॉफीज मतलब स्मॉल होते जाएगा. मतलब जैसे जैसे एज एडवांस हो रही है थाइमस छोटा होते जा रहा है. इन न्यूबॉर्न बेबी थाइमस इज क्वाइट लार्ज. बड़ा होता है थाइमस न्यूबॉर्न बेबी में.
बट विथ प्रोग्रेसिव एज इट डीजनरेट बोल सकते हैं, एंड विथ प्रोग्रेसिव एज इट अट्रॉफीज बोलो या डीजनरेट बोलो. So that's why, what is the reason in old age? ओल्ड एज होने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं. व्हाई ओनली old age peoples are having high risk of getting infection? The reason is thymus degenerates in old age. old age में thymus degenerate होता है, primary lymphoid organ thymus degenerate हो जाएगा. That's why the old age patients are having high risk of infections. इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. Okay, this is about primary lymphoid organ. Now, after primary lymphoid organ, बोन मैरो एंड थाइमस के बाद हम जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ जाएंगे. इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, साइड हेडिंग बना सकते हैं आप, secondary lymphoid organ, and you can write, after maturation the lymphocyte migrate. after maturation, यहां primary lymphoid organ में lymphocyte की originate हुई, proliferation हुआ. secondary lymphoid organ में क्या लिख रहे हैं देखिए, in secondary lymphoid organ after maturation lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs. secondary lymphoid organs कौन कौन से हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? बता चुका हूं मैं, प्लास्ट, ट्रिक था प्लास्ट, पेयर पैचेस, lymph node, appendix and tonsils. After maturation, the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ, where lymphocyte interact with antigen, where lymphocytes interact with antigen, forming effector cells. Yes, when the lymphocyte interact with antigen, जब मान लीजिए ये lymphocyte है, ये पेन, और ये एंटीजन है, ठीक है, जब lymphocyte एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगे, then the lymphocytes are called effector cells. Lymphocytes are called effector cells when they interact with antigen. And where this fight occur? फाइट होगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में. आप ऐसे समझ लो कि लिम्फोसाइट की बर्थ हो गई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, एंड वेयर दे हैव टेकन ट्रेनिंग. ये बोन मैरो में लिम्फोसाइट बने, यहां पर लिम्फोसाइट फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर दैट दे हैव टेकन ट्रेनिंग के बाद जो रियल फाइट है एंटीजन के साथ, द रियल फाइट विथ टेररिस्ट, द रियल फाइट विथ पैथोजन, real fight with antigen occur in secondary lymphoid organ. After maturation, lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ, and the secondary lymphoid organ कितने एग्जाम्पल दिया था मैं? PLAST, pair patches of small intestine, okay, lymph node, appendix, tonsils. वहां पर जाकर लिम्फोसाइट फाइट करेंगे एंटीजन के साथ और बनाएंगे इफेक्टर सेल. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, एक क्वेश्चन आ गया कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. Which endocrine gland is also a part of immune system? Which endocrine gland is also a part of
इम्यून सिस्टम। तो आप क्या आंसर देंगे बोलिए? विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? तो यू शुड आंसर हियर। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है? थाइमस। आंसर इज थाइमस। थाइमस is endocrine gland also because it produces hormone. Thymus produces thymosin hormone. Thymosin hormone, which help in maturation of T lymphocyte. Which help in maturation of T lymphocytes. ठीक है, सारे लिम्फोसाइट्स की बर्थ बोन मैरो में ही होगी, लेकिन लिम्फोसाइट क्या है? डिवाइड हो जाते हैं। 50% लिम्फोसाइट रिमेन इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ एंड 50% गो टू थाइमस। जो थाइमस को जाएंगे वो टी लिम्फोसाइट बन जाएंगे, और जो बोन मैरो में रहेंगे वो बन जाएंगे बी लिम्फोसाइट। वेरी सिंपल, क्लियर हो चुका है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, स्प्लीन के बारे में लिखेंगे। देखिए हम, व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन क्या है? स्प्लीन इज ए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट? Spleen, it is a secondary lymphoid organ. It is large bean shaped, large bean shaped है। Okay, left backside of stomach, बैक साइड ऑफ स्टमक बोलते हैं, इनसाइड द अब्डोमेन। अब्डोमेन के अंदर, स्टमक के पीछे स्प्लीन मिलेगा आपको। एंड दीज स्प्लीन इज हेल्पिंग फॉर ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ओके ब्लड फिल्टर। इसको हम ब्लड फिल्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लड फिल्टर? व्हाट इज द रीजन? इट इज कॉल्ड ब्लड फिल्टर बिकॉज इट ट्रैप ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। इट ट्रैप्स ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स। जो माइक्रोब ब्लड के रास्ते से अंदर आते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड फिल्टर बोले इसको। इट इज अ लार्जर रिजर्वायर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक। देखिए, ब्लड फिल्टर भी बोले, ब्लड बैंक भी बोल रहे हैं। बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक? बिकॉज इट इज ए रिजर्वायर ऑफ डेड आरबीसी। इट इज ए रिजर्वायर ऑफ डेड आरबीसी। It is a reservoir of dead RBC. That's why it is also called blood bank. And one more thing, also called graveyard of dead RBC भी बोल रहे हैं। dead RBC खबरस्तान है ये डेड आरबीसी का, ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी। ठीक है। एंड स्प्लीन का और एक पॉइंट याद रखना चाहिए। इन केस ऑफ विच इंफेक्शियस डिसीज द साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीजेस। इन केस ऑफ विच इंफेक्शियस डिसीज द साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीजेस। Okay, in malaria disease, the size of spleen increases. In malaria, the size of spleen increases. जरा सोचो ऐसा क्यों? Spleen increases. आया कुछ रीजन माइंड में? Yes, definitely आप सोचना चाहिए। In case of malaria, large number of RBCs are destroyed, right? The malarial parasite, the malarial pathogen first attack liver cell and then attack RBC पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी।
First attack liver cell and then attack RBC. When RBCs are destroyed in large number, जब RBC बहुत ज्यादा नंबर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, and those dead RBC get stored into the spleen, then the size of spleen increases. सिंपल है. नेक्स्ट नोट कर लीजिए सारे पॉइंट स्प्लीन के. आफ्टर स्प्लीन वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फ नोड. बोन मैरो पढ़ चुके हैं, थाइमस पढ़ चुके, स्प्लीन अप, स्प्लीन के बाद लिम्फ नोड. चलिए लिम्फ नोड के बारे में लिखेंगे. lymph node. What are lymph node? These are also secondary lymphoid organ. First point, it is a secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ. Where it is present? These are solid structure present at various points of the body. Various points of the body. बॉडी के हर पार्ट में मिलेगा आपको लिम्फ नोड. एंड दीज लिम्फ नोड का मेन फंक्शन है हेल्प इन ट्रैपिंग एंटीजेंस और पैथोजेंस. ठीक है. इवन एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया है. दिस इज सपोज ह्यूमन बॉडी एट वेरियस पॉइंट्स. देखिए यहां पर है थाइमस. चेस्ट रीजन में क्या मिलेगा आपको? थाइमस मिलेगा. सो दिस इज थाइमस. एंड एट वेरियस पॉइंट्स, यहां पर नेक में, जॉइंट्स में, लेग में, थ्रू आउट द एब्डोमेन, सेवेरल पॉइंट्स लिम्फ नोड ऐसे बने हुए हैं यहां पर थ्रू आउट द बॉडी. And all these lymph nodes are connected by lymphatic vessels. Lymphatic vessels से connected हैं like this. Followed. So just imagine कि इंडिया में कितने सिटीज हैं और कितने पुलिस स्टेशन होंगे थ्रू आउट इंडिया. सो लाइक दैट एवरी सिटी इज हैविंग पुलिस स्टेशन. लाइक दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज हैविंग लिम्फ नोड. ऐसा लिम्फ नोड है ये. इनका फंक्शन है अगर कोई टेररिस्ट बाहर से आ जाए, पैथोजन बाहर से आ जाए, पकड़ लेना. दे ट्रैप एंटीजेंस और पैथोजेंस. लिम्फ नोड आर वेरियस in number. Now lymphoid tissue के बारे में हम थोड़ा सा लास्ट क्लास में पढ़े थे. lymphoid tissue, what is the example of lymphoid tissue? Malt, for example, malt. What is malt? Mucosa associated lymphoid tissue. malt का फुल फॉर्म क्या है? Mucosa associated lymphoid tissue, right? And it accounts for total 50%. It accounts for total 50% of lymphoid tissue. मतलब पूरा 50% lymphoid tissue का क्या है? माल्टी है, lymphoid tissue. Okay, and where this malt is present, it is associated with mucosa. ये mucosa के साथ लगी हुई है. mucosa is inner lining. सबसे बॉडी में जो अंदर की लाइनिंग होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग, इट इज एसोसिएटेड विथ म्यूकोसा. फुल फॉर्म में खुद मालूम हो रहा है. So it is associated with mucosa of digestive system, respiratory system, urinogenital system.
फाउंड इन म्यूकोसा, फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ, बोलिए किसका म्यूकोसा? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनेटल सिस्टम। म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम 1 हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiratory system and urinogenital system also lined with malt, urinogenital system। अब ये क्या है? म्यूकोसा है, एक स्टिकी सब्सटेंस है। सो जैसे ही कोई पैथोजन अंदर आ जाएगा, देन दिस म्यूकोसा ट्रैप दोस पैथोजन्स। म्यूकोसा एक स्टिकी सब्सटेंस है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है ये म्यूकोसा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी हम एक डिस्कस करेंगे एड्स डिजीज, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल नाउ, अब तक जो है हम चैप्टर में क्या क्या पढ़े बताइए जरा। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा, है ना? क्या था वहां पर पॉइंट? द पर्सन्स हु आर हैविंग ब्लैक बाइल दे आर कॉल्ड हॉट पर्सनालिटी। लेकिन विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। अकॉर्डिंग टू ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम बता रहा था कि जो पर्सन के पास ब्लैक बाइल है उसको फीवर होता है, बट विलियम हार्वे ने थर्मामीटर यूज करके डेमोन्स्ट्रेट कर दिया द पर्सन्स हु आर हैविंग ब्लैक बाइल आल्सो हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो दैट मीन्स विलियम हार्वे डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उसके बाद हम डिस्कस करें कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। बैक्टीरिया में कौन से डिजीज कॉमन है? वायरस में, फंगस में, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआन डिजीजेस इन ह्यूमन। प्रोटोजोआन डिसीजेस इन ह्यूमन इंक्लूड मलेरिया, अमीबियासिस, राइट। अभी हम जो है एक और डिजीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एड्स। एड्स टॉपिक हमारी एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी syndrome, acquired immunodeficiency syndrome. What is syndrome? Syndrome मतलब collection of symptoms, collection of symptoms or diseases, बहुत सारे diseases, collection of disease। ठीक है, जैसे गुलदस्ता होता है, फुल फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर होते हैं, लाइक दैट एड्स पेशेंट इज हैविंग कलेक्शन ऑफ डिसीजेस, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला गया। सिंड्रोम मींस नॉट वन डिसीज, सेवेरल डिजीज। तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड इट इज नॉट कंजेनिटल डिसीज, इट इज नॉट कंजेनिटल, इट इज नॉट कंजेनिटल डिसीज। कंजेनिटल मतलब इनहेरिटेड डिसीज नहीं है ये। कंजेनिटल का मतलब है बाई बर्थ, बाई बर्थ। मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट बाई बर्थ डिजीज, इट इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज, नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज। जैसे कुछ डिजीजेस थे, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स आ रहे थे, लाइक दैट इट इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज। ओके, ये जेनेटिकली बाय बर्थ डिफेक्ट नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन जेनेटिक मटेरियल। ओके, बट इन्फेक्टेड मदर, इफ वुमन इज इन्फेक्टेड विथ एड्स, तो उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, दैट बेबी आल्सो सफर फ्रॉम एड्स।
लेकिन इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट ए कंजीनेटल डिसीज। कंजीनेटल का मतलब क्या है? इट इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, सर कंजीनेटल का मतलब क्या है? कंजीनेटल का मतलब है नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज। जस्ट लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, जो डिजीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर हो रहे थे थ्रू डिफेक्टिव जीन, like that AIDS is not congenital disease. Of course it is transferred from infected woman to her baby, to her newborn baby ट्रांसफर हो सकता है, बट जेनेटिकली इनहेरिट नहीं हो सकता। ठीक है। सो डू यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज एंड एड्स? जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज मतलब जीन में, डीएनए में कुछ तो गड़बड़ रहता है, हीमोफीलिया में, कलर ब्लाइंडनेस में। ओके, दैट्स व्हाई दोज आर कॉल्ड जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज। But here in AIDS, we are saying it is not genetically inherited disease. That means it is not associated with any gene problem or defective genetic material. First reported कब हुआ AIDS? First reported in 1981 में रिपोर्ट हुई एड्स डिसीज। फर्स्ट एड्स डिसीज के बारे में पता चला। And this AIDS killed around 25 million people. अब तक जो है 25 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ एड्स डिसीज, और ये नंबर इंक्रीज होता रहा है। एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। नाउ एड्स इज कॉज्ड बाय ए वायरस। एक वायरस से हो रही है एड्स डिसीज। इट इज कॉज्ड बाय ए वायरस। व्हाट इज दैट वायरस? HIV, caused by HIV. What is HIV? Human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus बोल रहे हैं इसको। HIV belongs to a group of virus. Belongs to a group of virus. What is that group of virus called? HIV comes under which group of virus? बोल तो आप क्या बोलेंगे? Retrovirus. It belongs to which group of virus? Retrovirus. HIV retrovirus से belong करता है, ग्रुप है। And HIV, it is an enveloped virus. HIV is enveloped virus. इसके ऊपर एक कवर आता है, enveloped virus है, because there is a cover around the HIV. And HIV has two molecules. कितने? HIV has two molecules of single-stranded RNA. Single-stranded RNA and reverse transcriptase enzyme. So HIV में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल होंगे RNA के। Whether HIV is having single RNA or two RNA. HIV is having two RNA. HIV में दो RNA मिल रहे हैं आपको, two single stranded RNA molecule and reverse transcriptase enzyme. If I draw here rough diagram, HIV का अगर रफ डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, HIV इट इज एन एनवलप्ड वायरस है। इसके अंदर जो है आपको दो RNA ड्रॉ करना पड़ेगा, दो RNA ड्रॉ करना, and that RNA is associated with reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase, दो RNA मिलेंगे आपको। So what is the genome of HIV? HIV
HIV हैज RNA जीनोम, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA से बना हुआ है, RNA जीनोम है इसके पास. Now let us discuss how AIDS spread. How AIDS spread from one person to another person. कैसे spread होगा? Let us discuss. Spread of AIDS. Question is how AIDS spread. Okay, so number 1 point, AIDS spread through sexual contact with infected person. Sexual contact with infected person. अगर कोई पर्सन, नॉर्मल पर्सन, एड्स पेशेंट के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो ये डिसीज स्प्रेड हो जाएगी. इन्फेक्टेड पर्सन. Then contaminated blood transfusion. Contaminated या नहीं तो आप infected भी बोल सकते हैं. Infected blood transfusion. कभी infected blood transfusion कर दिए तब भी हो सकता है. And third one, sharing infected needles. Sharing infected needles. Infected needles or syringes, injection syringes जो होते हैं. Okay, and the fourth one, mother to child, mother to fetus थ्रो प्लासेंटा भी जा सकता है. HIV disease can also transfer from mother to fetus through placenta. Okay. High chances of AIDS infection. AIDS infection in those persons. In those persons मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं एड्स होने के. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स. इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं और जो इंट्रावेनस ड्रग्स यूज करते हैं. इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन लेते हैं वेन्स के अंदर ड्रग्स का. सो दोज आर आल्सो हैविंग हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स इन्फेक्शन. एंड द थर्ड वन, दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको बार बार ब्लड देना पड़ता है. रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहां पर देते हैं रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? एज इन थैलासेमिया, थैलासेमिया, ल्यूकेमिया. ओके, कुछ ऐसे डिजीज एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है. मिडिल ऑफ द एड्स टॉपिक में क्वेश्चन पूछा है, इन विच डिजीजेस डू यू थिंक रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स आर रिक्वायर्ड? इन विच डिजीज? तो यहां पर दिया है थैलासेमिया और ल्यूकेमिया. सबसे पहले थैलासेमिया क्या है सुन लो. थैलासेमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन. क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कुछ जेनेटिकली अफेक्टेड न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं थैलासेमिया, जहां पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है. हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी. सो दैट्स व्हाई सच बेबीज दे रिक्वायर पीरियोडिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हर 15 डेज, 20 डेज में या 30 डेज में एक बार ब्लड लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन हीमोग्लोबिन क्वांटिटी.
दे रिक्वायर थ्रू आउट लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते ही रहना, एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ थैलासेमिया करना ही पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर पेशेंट को भी जो है ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ब्लड रिपीटेडली ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। सो हाउ एड्स स्प्रेड? नंबर 1, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर, या शेयरिंग नीडल्स मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिसके होते हैं, दोज पर्सन्स आर हैविंग हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स, एंड इवन इंट्रावेनस जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो वेन्स में इंजेक्शन ले रहे हैं। रिसेंटली एक एग्जाम में स्टेटमेंट आया था, रिस्क ऑफ एड्स आर हाई इन दोज पर्सन्स हु आर टेकिंग ड्रग्स बाय स्नॉर्टिंग, वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। स्नॉर्टिंग मतलब जो ड्रग्स नोज के थ्रू ले रहे हैं, नोज के थ्रू। सो वेदर दोज पर्सन्स आर हैविंग हाई रिस्क ऑफ एड्स? नो। हाई रिस्क ऑफ एड्स इज सीन इन दोज पर्सन्स हु आर टेकिंग व्हाट टाइप ऑफ ड्रग? इंट्रावेनस ड्रग्स, जो ड्रग अपने वेन्स में ले रहे हैं, दोज आर हैविंग हाई रिस्क ऑफ एड्स, इंट्रावेनस, नॉट बाय स्नॉर्टिंग और नॉट बाय चीविंग। और जो लोग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, रिपीटेड, एज इन केस ऑफ थैलासेमिया एंड ल्यूकेमिया, दे आर हैविंग हाई रिस्क ऑफ एड्स, क्योंकि कभी भी हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड आ जाए इनके बॉडी में, इन्फेक्टेड ब्लड आ जाएगा तो एड्स हो जाएगी। And one more point to be noted here, AIDS is not spreading through just physical touch. It is not spreading through just physical touch. Note, it is not spreading. AIDS is not spreading through जस्ट फिजिकल टच। जस्ट ऐसा टच करने से नहीं होता एड्स। किसी से कोई एड्स पेशेंट था, उसके साथ हैंड शेक कर ली, तो दैट इज नॉट द मेथड ऑफ एड्स ट्रांसमिशन। थ्रो टच नहीं होता ये, थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रो बॉडी फ्लूइड्स। एड्स कैन स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। जो एड्स का पेशेंट होगा, उसका ब्लड, उसका लिम्फ, उसका सेमेन या नहीं तो उसका सलाइवा, वहां से ट्रांसफर हो सकता है। एड्स स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर हो सकती है एड्स। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? Incubation period, the day of infection and the day of appearance of disease symptom is called incubation period. It is a time gap from the day of infection to the day of appearance of disease symptom. It is the time gap between the day of entry of pathogen, okay, it is the time gap between the day of entry of pathogen till the first appearance of disease symptom. First appearance of disease symptom. ओके मतलब जिस डे जो है पैथोजन एंटर हो गया बॉडी में, फ्रॉम दैट टाइम टिल द अपीयरेंस ऑफ डिसीज सिम्टम, इट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. इट इज जनरली 5 to 10 years. It is 5 to 10 years in case of AIDS. In case of AIDS,
ऐसा नहीं है कि HIV एंटर होते ही है विद इन 1 वीक यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स, यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ सिम्टम। जैसे ही HIV एंटर होगा कोई पता नहीं चलेगा बॉडी में, 5 to 10 years तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो डेडली वायरस है ये। 5 to 10 years तक ये हिडन फॉर्म में होता है बॉडी में, नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम अप टू 5 to 10 years। Then one more thing after incubation period, HIV लाइफ साइकिल तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट नाउ और एक चीज पढ़ना है, दैट इज सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स क्या है एड्स के? बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर मीन्स लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ फीवर। एक बार फीवर आ गया तो 3 months 4 months ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा फीवर कंटिन्यूअस रह रहा है। बाउट्स ऑफ फीवर। वेट लॉस, सडन वेट लॉस हो जाता है, सडन वेट लॉस। ओके, बाउट्स ऑफ फीवर, सडन वेट लॉस है। एंड वन मोर सिम्टम इन केस ऑफ एड्स, बाउट्स ऑफ फीवर, सडन वेट लॉस, डायरिया। दैट मीन्स एड्स पेशेंट को डायरिया भी होता है, लूज मोशंस भी हैं, डायरिया है। माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन भी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। सो एड्स पेशेंट आल्सो डेवलप टीबी, टीबी भी हो जाएगा उसको, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो जाएगा। टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन। व्हाट इज टॉक्सोप्लाज्मा? टॉक्सोप्लाज्मा इज ए प्रोटोजोआ। टॉक्सोप्लाज्मा, it is a protozoa, is a protozoa। because the AIDS में क्या है, the patient immunity is becoming weaker day by day, the immunity of the patient becomes weaker, that's why he is going to get several diseases। that's why एड्स में क्या है, लास्ट में यस का मतलब क्या है, व्हाट इज यस? सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन ऑफ डिजीज। एड्स इज नॉट वन डिजीज। एड्स पेशेंट डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ एड्स। एड्स पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ several diseases which occur due to immune deficiency। इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से डेथ हो जाएगी उसकी। टीबी इन्फेक्शन हो जाएगा, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो जाएगा इन केस ऑफ एड्स पेशेंट। several virus, fungi, several virus, fungi attack the patient, attack the patient, है ना। इम्यून डेफिशिएंसी है, उसको हर दिन कुछ ना कुछ होते रहेगा, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इम्यूनो डेफिशिएंसी है। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो कंप्लीट क्योर। देखिए, देर इज नो कंप्लीट क्योर ऑफ एड्स, देर इज नो कंप्लीट क्योर ऑफ एड्स। नहीं है एड्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट, ठीक है। इसलिए जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए फर्स्ट दिसंबर बोल के याद रख लीजिए, 1 दिसंबर को हम एड्स डे बोल के अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पीपल में। 1 दिसंबर एड्स डे। एंड 1 दिसंबर में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस बताना चाहिए कि हाउ एड्स स्प्रेड, व्हाट आर द प्रिवेंशन कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एड्स। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करेंगे हम, What is the diagnostic test of AIDS? डायग्नोस्टिक टेस्ट यहां पर एलिजा बोल के एक टेस्ट करते हैं। What is ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay,
इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से बोलते हैं। अगर जनरली क्वेश्चन पूछे वो एड्स इज डायग्नोज बाय विच टेस्ट, तो एलिजा बोल के आंसर है। कंफर्मेटरी टेस्ट अगर पूछेंगे आपको, व्हाट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स कंफर्म करना है, तब जो है पीसीआर है। पीसीआर इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स बोल के नोट करेंगे। इसलिए जो है यहां पर टू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NACO। व्हाट इज NACO? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। So both are trying to create awareness among the people to prevent the chances of AIDS infection, to prevent the spreading of AIDS. NACO और NGO कोशिश कर रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। So NACO और NGO का एक स्लोगन है to create the awareness about the AIDS in people through the slogan, और स्लोगन है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ओके, स्लोगन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एड्स। व्हाट इज द स्लोगन? स्लोगन क्या है? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि एड्स कैसे स्प्रेड हो रहा है, और उनको एड्स इन्फेक्शन होता है, एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट। एज आई टोल्ड, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है एड्स का, देयर इज नो कंप्लीट क्योर फॉर एड्स। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, बट देयर इज नो कंप्लीट क्योर देयर आल्सो। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट, बट देयर इज नो क्योर, बट देयर इज नो क्योर। क्योर तो नहीं होता यहां पर, जस्ट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं जो पेशेंट की लाइफ थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बट देयर इज नो कंप्लीट क्योर। एड्स एक ऐसा डिजीज है विच स्प्रेड थ्रू कॉन्शियस बिहेवियर। कॉन्शियस मालूम होता है कि एड्स ऐसा स्प्रेड हो रहा है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, सो दीज आर ऑल कॉजिंग एड्स। फिर भी जो है लोग ऐसे ही कॉन्शियसली इतना सब मालूम रख के भी स्प्रेड कर लेते हैं एड्स। सो एड्स इज जस्ट नॉट जस्ट लाइक निमोनिया और टाइफाइड। निमोनिया और टाइफाइड किसको भी हो सकता है अनकॉन्शियसली, टाइफाइड किसी को भी हो सकता है, लेकिन एड्स ऐसा नहीं है। एड्स इज स्प्रेड थ्रू कॉन्शियस बिहेवियर, राइट? एंड एड्स इज ए सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा मतलब द पीपल्स इन आवर सोसाइटी दे आर नॉट वेलकमिंग दीज एड्स पेशेंट, है ना, दे आर नॉट गोइंग टू शेक हैंड्स। ऑफ कोर्स शेकिंग हैंड्स इज नॉट कॉजिंग एड्स, नॉट स्प्रेडिंग एड्स, फिर भी लोग है ना एड्स पेशेंट को बहुत अलग देखेंगे, बहुत अलग सोचेंगे, राइट? इट इज नॉट लाइक टाइफाइड। अगर कोई टाइफाइड हो जाता है किसी को, तो हम देखने जाते हैं, उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उसको फ्रूट्स लेके जाते हैं, बट एड्स ऐसा नहीं है। एड्स इज ए सोशल स्टिग्मा, एक बहुत बुरी डिजीज है, राइट? सो दैट्स व्हाई NACO एंड NGO ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, दे क्रिएटिंग अवेयरनेस। जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, क्योर है ही नहीं तो प्रिवेंशन कर लेना बेटर है। तो प्रिवेंशन के लिए बता रहे हैं NACO एंड NGO डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। जैसे वहां पर RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या फैमिली प्रोग्राम का जो स्लोगन था,
हम दो हमारे दो, लाइक दैट यहां पर भी एक स्लोगन है फॉर एड्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एड्स. ये स्लोगन क्या है? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. सो in today's class we have discussed about immune system of human, lymphoid organs, and we started AIDS, discussing about AIDS. So next class we will discuss about the life cycle of HIV. Diagram आएगा वहां पर एक, the life cycle of HIV we will discuss in next class. Okay, thank you.